Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, viewers and students. Welcome to the second half of week number 12 of the course Mobile Ad Hoc Network. In the first half, we were talking about some make layer protocols that have been designed for the Mobile Ad Hoc Network. We saw a basic protocol, a classical one, which is called the Maka protocol, and then another protocol which is called the Maka W, that is an enhancement of the Maka protocol. Then we see another protocol that is called the Busy Tone Multiple Access Protocol, or BTMA in short, and several other protocols that have been inspired from the BTMA, like DBTMA, Dual Busy Tone Multiple Access Protocol, and also another variant is the Receiver Initiated Busy Tone Multiple Access Protocol. So these were few protocols that we were talking about in the first half. Now let's shift our attention to another very important and interesting protocol, which is called the Maka by invitation. Maka by invitation, or Maka by, it is actually a receiver initiated make protocol. Remember, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हमारे पास सेंडर इनिशिएटेड हैं और कुछ है जो कि हमारे पास रिसीवर इनिशिएटेड है. सो मागाबाई इज़ एक्चुअली रिसीवर इनिशिएटेड मेक प्रोटोकॉल. इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड इट्स डिज़ाइन, वो है कि नंबर ऑफ कंट्रोल पैकेट एक्सचेंज को किसी तरह से रिड्यूस किया जाए. सो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना जो है उसके लिए एक और तरह का मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया गया है इन दिस प्रोटोकॉल, राइट. माका प्रोटोकॉल में एक्चुअली इट इज़ आल्सो अ प्रोटोकॉल विच हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द माका, बट इसका जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है. सो माका प्रोटोकॉल हमारे पास दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारे पास सेंडर इनिशिएटेड प्रोटोकॉल है, राइट. यानी डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से जनरेट होती है, इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द सेंडर साइड. वाइल ऑन द अदर साइड जो माकाबाई का प्रोटोकॉल है, इट इज़ एक्चुअली अ रिसीवर इनिशिएटेड प्रोटोकॉल. Another difference is that Maka uses a three-way handshake. यानी पहले डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले सेंडर जो है वो RTS पैकेट जनरेट करके सेंड करता है. RTS के रिस्पॉन्स में रिसीवर जो है वो क्लियर टू सेंड कंट्रोल पैकेट जनरेट करके सेंड करता है, एंड देन उसके बाद एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट होती है. सो दिस इज़ लाइक अ थ्री-वे हैंडशेक प्रोसेस. RTS from one side, CTS from the other side, and then actual data transmission. So this is a three-way handshake. On the other hand, जो हमारे पास Maka-Bai का प्रोटोकॉल है, it eliminates the need for the request to send packet, which is normally generated by the sender. ठीक है. तो इस प्रोटोकॉल में जो हमारी ट्रांसमिशन है, it actually starts from the receiver side. So in Maka-Bai protocol, the receiver node actually initiate the data transmission. How the process is initiated? The receiver node will transmit a special packet that is called RTR control packet, or ready to receive. इट इज़ लाइक द अपोजिट. माका में हम लोग यूज़ करते हैं रेडी टू सेंड. यहाँ पे रिसीवर जो है जो पैकेट जनरेट करता है उसको कहते हैं रेडी टू रिसीव. हे, आई एम रेडी टू रिसीव, एनीबॉडी वांट टू सेंड समथिंग टू मी. सो it is actually the responsibility of the receiver to send the RTR control packet towards the sender.
Now, after receiving the RTR packet, if a sender is ready to transmit, it will respond to the RTR packet by sending a data packet. So this is the beauty of this protocol. We do not need a clear to send packet, या जो आर टी आर का पैकेट है ये आपके लिए रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड दोनों की फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है. So after receiving the RTR packet by the sender, it will start transmitting the data packet. So you can say here we have a two-way handshake mechanism. Diagrammatically you can see we have a sender, we have a receiver, and we have a neighbor. In this case it is a neighbor of the receiver. So actually we are dealing with the hidden terminal problem with respect to the sender. So you see the communication is initiated by the sender by sending a special control packet that is called the RTR packet. ये RTR packet जो है ये sender को भी receive होगा और उसके neighbor को भी receive हो जाएगा. जैसे ही RTR पैकेट सेंडर को रिसीव होता है and the sender has some data to send towards the receiver, it will start transmitting the data packet towards the receiver. The receiver node may not have an exact knowledge about the traffic arrival rates at its neighboring sender nodes. It needs to estimate the average arrival rate of packets. This is an important point कि चूंकि ये receiver initiated protocol है तो यहाँ पे एक issue है and that need to be addressed. The issue is like this कि इस protocol में sender node के traffic के बारे में information वो receiver को किस तरह हम बता सकते हैं, right? So exact knowledge about the traffic arrival at the sender node that plays an important and crucial role in this protocol. So we need a way, a mechanism to actually estimate the average arrival rate of the packets at the sender site or at the sender node. For providing necessary information to the receiver node for this estimation, ये estimation कौन लगाएगा? receiver node लगाएगा. किस तरह? based on information. ये information receiver node को कौन provide करेगा? sender provide करेगा. किस तरह provide करेगा? जो आपके पास data packets हैं they are actually modified to carry control information regarding the bake logged flows at the transmitter node and the number of packets it has in the queue and also the length of each packet. Such type of information will help the receiver to get an estimation about the traffic arrival rate of packets at the sender site. Once this information is available at the receiver site, इसको बेस करते हुए रिसीवर जो है वो एवरेज रेट ऑफ द फ्लोज उसको इजीली जो है वो एस्टिमेट कर सकता है. सो द मेन इशू in designing such protocol is that a receiver need a way to find the traffic information at the sender node. ये information कौन provide करता है receiver को? It is provided by the sender. किस तरह ये information provide करता है sender? By modifying the data packets. Data packets data के अलावा control information भी carry करेगा. ये control information जो है it includes information about the flows at the transmitter node, the number of packets जो कि उस वक्त queued है on the sender node and also the length of the packets. So ये जो information जब आप provide करते हैं receiver को, it will enable the receiver to find the average rate of the flows.
उसको वो एस्टिमेट करने में ये इंफॉर्मेशन उसकी हेल्प करेगा. बट अगेन सपोज करें कि जो एस्टिमेशन है, रिसीवर ने जो एस्टिमेशन की है वो इनकरेक्ट है, या ड्यू टू सम रीज़न वो एस्टिमेशन जो है वो अब पॉसिबल नहीं है. तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए माकाबाई का जो प्रोटोकॉल है, इट अलाउ द सेंडर नोड टू डिक्लेयर its backlog or to provide this information to the sender by using another control packet जिसको हम RTS पैकेट कहते हैं. ठीक है. सो अगर ड्यू टू सम रीजंस ये एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन या तो इनकरेक्ट है या पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में वी हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज टू अलाउ द सेंडर टू सेंड a control packet, that is the request to send packet, in order to provide such information. Okay. In the original Maka protocol, clear to send packet, it was used to inform the hidden terminals or hidden nodes, right? So if you remember, Maka में जो clear to send packets हैं उसके दो रोल्स हैं. एक रोल तो ये है कि ये रिसीवर सेंडर को इंडिकेशन दे देता है, ग्रीन सिग्नल दे देता है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द पैकेट, यू कैन ट्रांसमिट द डाटा. जो इसका सेकेंड रोल है वो ये है कि रिसीवर के नेबरहुड में जो नोड्स हैं उनको ये इन्फॉर्म करता है कि अपनी ट्रांसमिशन को डिफ़र करें, क्योंकि कोई और नोड इस वक्त इस रिसीवर के साथ कम्युनिकेशन करने जा रहा है. सो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए या हिडन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए CTS पैकेट को हम यूज़ करते हैं इन माका एंड अदर प्रोटोकॉल्स. इन दिस प्रोटोकॉल विच इज़ द माकाबाई प्रोटोकॉल, इसमें वी यूज़ अनदर पैकेट जिसको हम कहते हैं RTR पैकेट, रिक्वेस्ट टू रिसीव पैकेट. ये जो रिक्वेस्ट टू रिसीव पैकेट है, इट एक्चुअली carries information about the time interval during which the data packet would be transmitted. और ये इंफॉर्मेशन जो है ये ना सिर्फ सेंडर को मिलेगी, बट ये जो RTR के पैकेट्स हैं जब ये रिसीवर ट्रांसमिट करता है तो ये उसके नेबर्स में जितने नोड हैं उनको भी ये पैकेट चला जाता है. सो इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द डेटा पैकेट ट्रांसमिटेड बाय द नोड्स, वो हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए है. यानी नेबरहुड में जितने नोड्स हैं जो कि सेंडर से हिडन हैं, उनको इस RTR पैकेट की वजह से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस वक्त कोई और हमारे जो नेबरहुड में रिसीवर है उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है. सो दे विल डिफ़र देयर ट्रांसमिशन. कितनी देर के लिए, जो टाइम उसमें एस्टिमेटेड टाइम जो उसमें मेंशन है, उसी टाइम को सामने रखते हुए जो हिडन नोड्स हैं वो अपनी ट्रांसमिशन को जो है वो डिफ़र करेंगे. सो बाय यूजिंग द RTR पैकेट जो कि रिसीवर सेंड करता है नॉट ओनली टूवर्ड द सेंडर बट आल्सो टूवर्ड्स देयर नेबर्स, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं इन माकाबाई प्रोटोकॉल. Well, collision can still occur in Makabai protocol. अगर हम बात करें डेटा पैकेट्स की तो वहाँ पे collision is like impossible, but जो hidden terminal problem है, still it can affect the control packet transmission. यानी डेटा पैकेट collision maybe it's impossible, लेकिन collision between a data packet and a control packet, or collision between two control packet, that is possible due to the hidden node problem.
This leads to protocol failure is in certain cases the RTR packets can collide with the data packets. So जिस तरह मैंने बताया collision is still possible between the data packets and the RTR packet, and one such scenario is shown in the figure जहाँ पे collision जो है वो आकर हो रही है. So what you see in the figure, we have two sender S1 and S2, and we have two receiver R1 and R2, and we have another node in between R1 and R2, and there is node 1. So what you see here is like चूँकि ये receiver initiated protocol है, so we have a transmission initiated by R2 toward S2, and we have a communication initiated by R1 toward S1. यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर ले, ये जो PTR है, this is not PTR, this is actually RTR. So RTR1, RTR1, RTR2 and RTR2. This is not P. Okay. So here the RTR packets are transmitted by the receiver nodes R2 and R1. They actually collide at node A. For example, जब ये नोड S1 को RTR1 पैकेट सेंड करता है, तो वो ना सिर्फ सेंडर को मिलेगा, बल्कि उसके जो नेबरहुड में A नोड है उसको भी ये पैकेट मिल जाएगा. सिमिलरली ये जो R2 है, जब ये RTR पैकेट को ट्रांसमिट करता है टुवर्ड S2, तो वो ना सिर्फ S2 को मिलेगा, बल्कि इसके नेबरहुड में जो नोड है A, उसको भी वो पैकेट जो है वो रिसीव हो जाएगा. Now at the same time A is receiving packets from R1 and R2. So node A, it is actually not aware of the transmission from nodes S1 and S2. So when node A transmit RTR packet, they will collide with data packet at the receiving nodes R1 उसके साथ भी collide करेंगे and R2 उसके साथ भी collide कर सकते हैं, because they are transmitting with one another. R1 and S1 and R2 and S2 they are also communicating with one another. और इसी दौरान अगर A1, चूँकि उसको उन दोनों की communication का पता नहीं है, अगर वो इस टाइम पे कुछ ट्रांसमिट करेगा, so definitely there is going to be a collision. So collision is possible in Makabai protocol. एंड लास्ट पॉइंट इस कि इस प्रोटोकॉल की जो एफिशिएंसी है, इट्स मेनली डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर नोड टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली द अराइवल रेट्स ऑफ द ट्रैफिक एट द सेंडर नोड. उसकी एस्टिमेशन किस तरह ये करता है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटोकॉल. आवर नेक्स्ट प्रोटोकॉल in this category is called the PERMA protocol, DPERMA. It stands for Distributed Packet Reservation Multiple Access Protocol. MA Multiple Access, PR Packet Reservation, and D is Distributed. ये जो प्रोटोकॉल है, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन अ प्रीवियस प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं पैकेट रिजर्वेशन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल और PERMA प्रोटोकॉल. सो इट इज़ एन एक्सटेंशन एन एनहेंसमेंट ऑफ द PERMA. ये जो ओरिजिनल PERMA प्रोटोकॉल है, इट इज़ एक्चुअली अ मेक प्रोटोकॉल फॉर वॉइस पैकेट ट्रांसमिशन. The objective of PERMA protocol is to transmit voice packets mostly in local area network. And the PERMA protocol itself, it is a modification of the reservation Aloha protocol. And several versions of PERMA were proposed for different types of traffics, and one of the flavor of the PERMA protocol is the DPERMA. So यहाँ पे जैसा लिखा गया है कि PERMA was originally proposed for the voice support in वायरलेस लेन, जहाँ पे आपके पास बेस स्टेशंस होते हैं जो कि फिक्स्ड एंटिटीज़ हैं फॉर मेक ऑपरेशन.
सो जो डी है इन द PERMA प्रोटोकॉल, इट इज़ एक्चुअली फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। चूँकि हमारे पास मोबाइल एडहॉक नेटवर्क जो है दैट इज़ एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नोड। तो अगर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में आपको वॉइस ट्रैफिक सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए जो प्रेफरेबल प्रोटोकॉल है दैट इज़ DPERMA, and it is actually a TDMA based protocol. When we say TDMA based protocol, इसका मतलब है कि जो चैनल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम स्लॉट्स, यानी डिफरेंट नोड्स को हम डिफरेंट टाइम स्लॉट्स एलोकेट करते हैं और उन्हीं टाइम स्लॉट्स में उनको हम अलाउ करते हैं कि वो पैकेट्स को जो है वो ट्रांसमिट करें. सो एक्चुअली इट इज़ अ TDMA बेस्ड स्कीम. The basic concept of this protocol is that we divide the available channel into fixed and equal size frames along the time axis because it is a TDMA based scheme. So as you can see in the picture, we have a frame and the frame has been divided into different slots. So actually each frame is composed of S number of slot. S is an integer, it could be 1 2 3 or and so on. और सिर्फ यही डिवीजन नहीं है, हर एक स्लॉट को फिर हम मिनी स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं M मिनी स्लॉट्स. एंड फर्दर जो आपके पास मिनी स्लॉट्स हैं उनको हम 2 कंट्रोल फील्ड्स में डिवाइड करते हैं. एक को हम कहते हैं RTS और एक को हम कहते हैं CTS along with BI, and BI stand for busy indication, right? So BI stand for busy indication. So the main concept is that we have a channel. The channel is divided into fixed and equal size frame. So this is a frame. फिर हर एक frame को that is actually composed of S number of slots. S is an integer, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. एंड देन हर एक स्लॉट को हम मिनी स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं M मिनी स्लॉट्स में. और फिर हर एक मिनी स्लॉट इज़ एक्चुअली मेड ऑफ 2 कंट्रोल फील्ड्स. फर्स्ट कंट्रोल फील्ड इज़ RTS with BI and the second control field is CTS with BI, and BI stand for busy indication. ये जो कंट्रोल फील्ड्स हैं they are actually used for slot reservation and also for overcoming the hidden terminal problem. यानी जिस तरह माका और उसके फ्लेवर्स में हमने RTS CTS को यूज़ किया था in order to avoid the hidden terminal problem as well as the exposed terminal problem. So same is the case with this protocol. हम क्या कर रहे हैं, हम इन कंट्रोल फील्ड्स को यूज़ कर रहे हैं to avoid hidden node problem. Not only to avoid the problem but also to make a reservation for the slots. Because if you want to transmit the data then you need a free slot और उस slot को you need to reserve और उसको reserve करने के लिए you need these control fields which are RTS and CTS. So for example, if all the nodes that have packet to be transmitted, they are ready to transmit the packets, वो क्या करेंगे, they will have to contend, वो compete करेंगे for the first mini slot, that is mini slot 1 of each the slot. For example, here you see slot number 2, then we have slot 3 and 4 and 5 and 6. यानी जितने भी slots हैं हर एक slot के लिए all the nodes have to compete. Okay. So जो आपके पास फर्स्ट मिनी स्लॉट है उसके लिए कंपटीशन होगी. अगर कोई उसको यूज़ कर ले, कोई उस कंपटीशन को जीत ले, फाइन. अगर कोई भी नोड मिनी स्लॉट 1 को रिज़र्व नहीं करता तो फिर जो रिमेनिंग M-1 मिनी स्लॉट्स हैं उसके लिए कंपटीशन होगी. ठीक है. लेकिन अगर कोई फर्स्ट मिनी स्लॉट को, कोई भी नोड फर्स्ट मिनी स्लॉट को रिज़र्व कर ले
तो जितने भी रिमेनिंग मिनी स्लॉट्स हैं m-1 दैट विल बी ग्रांटेड टू दैट नोड जिसने कंपटीशन जो है वो विन किया है, राइट. सो फॉर एग्जांपल दिस इज स्लॉट नंबर 2, दिस इज एम्प्टी. इसके लिए वोटिंग होगी लेट्स सपोज. सो इसको जो है वो मिनी स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले मिनी स्लॉट 1 के लिए कंपटीशन होगी. जितने भी नोड्स हैं जो कि ट्रांसमिट करने जा रहे हैं दे विल हैव टू compete टू गेट एक्सेस टू दिस मिनी स्लॉट. जिसको ये मिनी स्लॉट अलॉट हो गया, बाकी जितने भी मिनी स्लॉट्स हैं ये उसके लिए रिजर्व हो जाएंगे. लेकिन अगर मिनी स्लॉट 1 के लिए कोई विन नहीं करता तो ये वैसे ही गुजर जाएगा. देन मिनी स्लॉट 2 एंड देन 3 एंड देन 4. सो द कंपटीशन विल गोज until the last mini slot has been reached. तो जो कंपटीशन विन करता है m-1 स्लॉट उसको अलॉट कर दिए जाते हैं. एंड दिस इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट 1 स्लॉट. आल्सो जो सेम स्लॉट है इन द सब्सिक्वेंट फ्रेम्स, फॉर एग्जांपल दिस इज फ्रेम 1, फ्रेम 2 में जो सेम स्लॉट होगा, स्लॉट नंबर 2, फिर फ्रेम 3 में, फिर फ्रेम 4 में, फ्रेम 5 में एंड सो ऑन. वो सारे जो हैं कैन बी रिजर्व फॉर दिस विनिंग टर्मिनल और दिस विनिंग नोड. कब तक ये रिजर्वेशन होंगी? until it completes its packet transmission session. तो जब तक डेटा ट्रांसमिशन के लिए अवेलेबल है, रिजर्वेशन ऑफ द सेम स्लॉट्स इन डिफरेंट फ्रेम्स दैट विल हैव टू बी रिजर्व फॉर दैट पार्टिकुलर नोड. सो यहाँ पे जो मैंने बताया कि अगर कोई भी नोड फर्स्ट मिनी स्लॉट के लिए कंपटीशन विन नहीं करता तो जो रिमेनिंग मिनी स्लॉट्स हैं दे आर कंटिन्यूसली यूज फॉर कंटेंशन. 1 के बाद 2 के लिए कंपटीशन होगी, 2 के बाद 3 के लिए, 3 के बाद 4 एंड देन सो ऑन. कब तक? until the contending node wins any mini slot. Now any node that want to transmit packet, पहला काम उसने क्या करना होगा? कोई नोड है अगर उसने पैकेट ट्रांसमिट करना है सो फर्स्ट उसको चाहिए कि अपने लिए स्लॉट्स को रिजर्व कर ले, अगर अभी तक उन्होंने कोई स्लॉट रिजर्व नहीं किया. So the first thing that any node need to do while transmitting a packet is to reserve a slot. Now, if a sender node detects that the channel to be idle at the beginning of a slot, mini slot 1, it transmit RTS packet. Okay. कोई नोड है कंपटीशन के लिए वो आ गया और उसने जो है वो मिनी स्लॉट 1 को रिज़र्व कर लिया. अब रिजर्वेशन तो हो गई. अब डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले जो कंट्रोल पैकेट्स हैं RTS एंड CTS उसको हमने यूज़ करना है. सो जो नोड है जिसने मिनी स्लॉट 1 को रिज़र्व किया है, इट विल नाउ हैव टू ट्रांसमिट द RTS पैकेट विच इज़ अ स्लॉट रिजर्वेशन रिक्वेस्ट. किसको? to the intended destination. How? By using the RTS by part of the current mini slot. You see जो हमारे पास मिनी स्लॉट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसको आपने रिजर्व कर लिया. नाउ इट हैज़ टू सब पोर्शन RTS एंड CTS. तो जो सेंडर है वो इसके इस RTS BI स्टैंड फॉर बिजी इंडिकेशन, इस कंट्रोल फील्ड को वो क्या करेगा? वो यूटिलाइज करेगा, वो यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द इंटेंडेड डेस्टिनेशन अबाउट द इनकमिंग ट्रांसमिशन. नाउ ऑन द अदर साइड, when the receiver receive the RTS packet, रिसीवर नोड क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा. किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा? रिजर्वेशन तो हो चुकी है. इट विल सेंड अनदर पैकेट दैट इज कॉल्ड द CTS, क्लियर टू सेंड पैकेट. किस तरह वो सेंड करेगा? बाय यूजिंग द कंट्रोल फील्ड. कौन सी कंट्रोल फील्ड? CTS BI. किस स्लॉट की? द सेम मिनी स्लॉट. हियर यू सी टू फील्ड्स. दिस इज फॉर द सेंडर एंड दिस इज फॉर द इंटेंडेड रिसीवर. सो जैसे ही रिसीवर को RTS पैकेट मिलता है and if it is ready and willing to accept the data, ये CTS को send करेगा by using the same mini slot but using a different field that is CTS by. Now अब सेंडर की बारी है. अगर सेंडर को CTS सक्सेसफुली मिल जाए then it gets the reservation for the current slot. Reservation is now complete.
because you get an acknowledgement in the form of CTS from the intended destination. अब जो है remaining mini slots of the same slot, उसको जो है ये sender यूज़ कर सकता है. और वो मिनी स्लॉट्स कौन से हैं? अगर आपने 1 मिनी स्लॉट रिजर्व किया है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम 2 to m. अगर आपने 2 रिजर्व किया है, सो द रिमेनिंग मिनी स्लॉट्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम 3 to m. अगर आपने मिनी स्लॉट 3 को रिजर्व किया है, सो द रिमेनिंग मिनी स्लॉट्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम 4 to m. और इन अदर केस अगर ये CTS RTS is not successful, then the node has to compete again for the subsequent mini slots of the same slot. ओके, इस प्रोटोकॉल के बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा कि इट हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर वॉइस ट्रैफिक. सो वी नीड वॉइस ट्रैफिक का मतलब ये है कि आप वॉइस के लिए भी प्रेफरेबली यू कैन यूज़ इट फॉर वॉइस, लेकिन आप नॉर्मल ट्रैफिक के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. सो यू गॉट 2 टाइप ऑफ ट्रैफिक. And then you need to prioritize node. यानी अगर किसी नोड के पास वॉइस ट्रैफिक है, obviously they would need to give priority. उनको हाई प्रायोरिटी आपने देनी है ओवर द नोड्स जो कि नॉर्मल डेटा को या नॉर्मल ट्रैफिक को ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो सच ट्रैफिक को, सच प्रायोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो DPerma प्रोटोकॉल है, इट एक्चुअली फॉलोज 2 रूल्स. What are those? The first rule is very simple कि अगर voice nodes हैं, so they should be allowed to start competing for the mini slot 1 with probability p1. और जो normal data वाली nodes हैं, they will compete for the same slot with probability p-1. so इनकी probability ज़्यादा है वॉइस नोड की एज कम्पेयर टू द नॉर्मल नोड ट्रैफिक. सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट नोड, क्योंकि फर्स्ट अगर किसी को मिल जाए तो ऑब्वियसली दे विल गेट हाई प्रायोरिटी. उसको दोबारा जो है सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए कम्पीट नहीं करना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स, वॉइस ट्रैफिक के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस द चैनल. और जो रिमेनिंग m-1 मिनी स्लॉट्स हैं, उसके लिए अगर कंपटीशन होगी, and then you have both type of traffic available, like वो उसमें voice भी है and data भी है, so they will be allowed to compete for the channel with the probability p-1. And why this rule is there? Because the reservation process for a voice node is triggered only after the arrival of voice traffic at the node जहाँ से आप डेटा को सेंड कर रहे हैं. So in order to avoid unnecessary reservation of the slots, we need this rule. According to the second rule, only जो node mini slot के competition को win कर ले, अगर वो voice node है या उसके पास जो traffic है वो voice का है, उस केस में उसको हम permit करेंगे कि same slots को reserve करे in each subsequent frame until the end of the session. लेकिन अगर winning node जो है वो उसके पास voice traffic नहीं है, उसके पास normal traffic है, तो उस केस में there is not necessary कि वो जो है same slot को in the subsequent frame उसको भी reserve करे for their transmission. No, that is only for the voice traffic. Another point about this protocol is that if a data node है or like a normal traffic node and it wins the competition, then it will be allowed to use only one slot and that is the current slot. और दोबारा इसको जो है वो fresh reservation करनी होंगी for each subsequent slot. यानी अगर वॉइस ट्रैफिक है, नो रिजर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सबसीक्वेंट फ्रेम्स, और अगर नॉर्मल ट्रैफिक है तो रिजर्वेशन, फ्रेश रिजर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच सबसीक्वेंट स्लॉट और फ्रेम.
इस प्रोटोकॉल में लाइक अदर प्रोटोकॉल्स we have to handle the problems of hidden node and exposed. So nodes that are located within the radio coverage of the receiver, उनको हम परमिशन नहीं देंगे कि वो भी ट्रांसमिशन स्टार्ट करे साइमल्टेनियसली व्हेन द रिसीवर इज़ रिसीविंग पैकेट. अगर वो भी उनको आप अलाउ करें सो ऑब्वियसली कोलिजन जो है वो अकर होगी एट द रिसीवर. ठीक है. सो इस कोलिजन ऑफ पैकेट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी ट्रांसमिशन को डिफर करते हैं. ओके ये कुछ और पॉइंट्स हैं, दे आर सिंपल. जल्दी से आई विल गो थ्रू इट. फॉर एग्जांपल अ नोड दैट विंस द कंटेंशन फॉर इन मिनी स्लॉट 1 स्टार्ट ट्रांसमिट. जैसे ही किसी नोड को जो है वो स्लॉट अलॉट हो जाए बेस्ड ऑन कंटेंशन, वो इमीडिएटली अपनी ट्रांसमिशन जो है वो मिनी स्लॉट नंबर 2 से स्टार्ट कर सकता है. अब इस दौरान कोई अदर नोड है एंड द नोड वांट टू ट्रांसमिट एज वेल, दे विल हैव टू फाइंड द चैनल टू बी बिजी फ्रॉम मिनी स्लॉट 2. उनको जो है वो चैनल जो है वो बिजी मिलेगा. सो जो RTS है कैन बी सेंड ओनली व्हेन द चैनल इज आइडल. रिक्वेस्ट टू सेंड यानी इस तरह नहीं है कि रिक्वेस्ट टू सेंड पैकेट सेंड करने के बाद आपको ये इंडिकेशन मिले कि द चैनल इज़ बिजी. नो, रिक्वेस्ट टू सेंड आप तब सेंड करेंगे जब आपको श्योरिटी हो कि द चैनल इज़ आइडल, द चैनल इज़ नॉट बिजी, और अदर जो नेबरिंग हुड में जो नोड्स हैं वो इस वक्त ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं या जो है वो कम्पीट नहीं कर रहे फॉर द चैनल. In order to avoid the hidden node problem, जो भी nodes हैं just like the previous approach CTS अगर उसको मिल जाए so they will defer their transmission. and exposed node terminal को avoid करने के लिए अगर RTS कोई node जो है वो hear करे लेकिन CTS उसको ना मिले then they are allowed to transmit and it is suitable for voice traffic rather than the data traffic information. Okay, our next protocol for the MAC layer is called MAC protocol using directional antenna. This protocol has a different working mechanism, because it uses directional antennas, and the objective of using directional antenna is to improve the throughput, is to improve the performance of the network, right? So actually the protocol that will use the directional antenna will actually try to improve the throughput and performance of the system, of the network. But normally in majority of the cases जो आपके पास mobile nodes होते हैं, they do not have any location information by means of which the direction of the receiver and the sender nodes could be determined. So you need alternative intelligent mechanism to solve this problem. यानी जो मोबाइल नोड्स हैं उनके पास अपनी लोकेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती. आप कह सकते हैं कि GPS हम लगा सकते हैं, बट दैट इज़ अनदर डिस्कशन, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स. वी आर सपोजिंग दैट नोड्स डू नॉट हैव द लोकेशन इंफॉर्मेशन. So we need another mechanism to find the direction of the sender and the receiver. उसके लिए ये जो प्रोटोकॉल है, it uses a mechanism and we are here to explore the mechanism of directional antennas protocol. Actually इस कैटेगरी के जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे, they will use directional antennas not only for transmitting the packets but also for receiving the data packets, and also they will try to reduce the interference to other neighbor nodes. Radiation pattern वगैरह दोनों की सेम नहीं होंगी, and it will obviously increase the throughput of the system. इन कैटेगरीज के प्रोटोकॉल्स में हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास जितने भी नोड्स हैं, दे हैव ओनली वन
रेडियो ट्रांसीवर। ट्रांसीवर को आप यूज़ कर सकते हैं बोथ फॉर सेंडिंग एज वेल एज फॉर रिसीविंग द सिग्नल्स और द डाटा। सो दे सपोज के उनके पास सिर्फ एक ही रेडियो ट्रांसीवर है जो कि ट्रांसमिट भी कर रहे हैं एंड रिसीव भी कर रहे हैं ओनली वन पैकेट एट एनी गिवन टाइम। बट ये जो ट्रांसीवर है इट इज़ इक्विप्ड विथ एम डायरेक्शनल एंटेनास। सो अगर आप इस फिगर को देखें, you have one transceiver but you have 6 directional antennas with different radiation patterns. So antenna number 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and they are actually covering a part of the whole region. So that is why they are called directional antenna. Otherwise अगर वो सारे डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट करे सो उनको हम जो है फिर वो omni directional antennas जो है वो कहेंगे. So actually जो directional antennas हैं they actually cover a conical radiation pattern and they actually spanning an angle of radiations. For example 30 डिग्री को वो कवर कर रहे हैं, 40 को कर रहे हैं, 45 को कर रहे हैं, 90 को कर रहे हैं, 180 को कर रहे हैं वगैरह वगैरह. So one of the example is shown here. Another assumption while working for such protocol is that the transmission by the adjacent antennas they will never overlap. यहाँ के signal यहाँ, यहाँ के यहाँ, यहाँ के यहाँ, they will never overlap. They have predefined fixed regions in which they are able to transmit and receive. सिमिलरली इस कैटेगरी के जो मेक प्रोटोकॉल हैं हम एज्यूम करते हैं कि उनमें ये एबिलिटी है कि हर एक एंटेना को इंडिविजुअली स्विच करे या सारे एंटेनास को टुगेदर जो है वो एक्टिव मोड में या पैसिव मोड में लेके जाए. एंड जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो ट्रांसीवर है दे यूजेस ओनली द एंटेनास दे आर इन एक्टिव मोड. सो अगर कोई एंटेना एक्टिव मोड में है यू कैन यूज़ इट फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन. अगर वो पैसिव मोड में है या आइडियल मोड में है तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. If a node transmit when all okay, this is very obvious कि अगर कोई स्टेशन है, कोई नोड है और उसके सारे एंटेनास एक्टिव हैं और सारे जो हैं वो ट्रांसमिट कर रहे हैं. So that is not a directional antennas anymore. That is like omnidirectional antenna because they are transmitting at the same time in all directions. Okay, जो receiver nodes हैं they uses receiver diversity while receiving on all antennas. Now the problem is कि किस तरह रिसीवर को पता चलेगा कि किस एंटेनास के ज़रिए मैंने जो है वो ट्रांसमिशन को पिक करना है. सो रिसीवर नोड जो है दे यूज सिग्नल फ्रॉम एंटेनास विच रिसीव्स द इनकमिंग सिग्नल एट मैक्सिमम पावर. यानी फॉर एग्जांपल आपको हर तरफ से सिग्नल्स आ रहे हैं लेकिन जिस एंटेना को सबसे ज़्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं सो यू हैव टू टर्न दैट एंटेना ऑन. आप सिर्फ उसको जो है वो रिसेप्शन के लिए यूज़ करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे. और इस केस में जो सेलेक्टेड एंटेना है इट कुड बी द वन जिसकी जो पैटर्न है विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सोर्स, टूवर्ड द सेंडर ऑफ द सिग्नल. ठीक है, तो अगर इफ़ दे आर लाइक इन फ्रंट ऑफ वन अनदर सेंडर एंड रिसीवर सो दैट एंटेना इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड फॉर रिसेप्शन और उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बाकियों से ज़्यादा भी होंगी. इट इज़ एज्यूम कि जो रेंज आप यूज़ कर रहे हैं मोस्टली सारे एंटेनास के लिए वो सेम होनी चाहिए. So this is another assumption. Okay, in order to detect the presence of a signal, we define a threshold value. हर एक एंटेना के लिए हम एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू जो है वो डिफाइन करते हैं. कोई भी नोड किसी चैनल को एक्टिव तब कंसिडर करेगा अगर उसकी रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ की वैल्यू वो उस प्री डिफाइंड थ्रेशहोल्ड के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो. उस केस में वो एंटेना जो है वो एक्टिव होगा एंड इट विल बी एबल टू ट्रांसमिट और रिसीव द इंफॉर्मेशन. The packet exchange mechanism followed for transmitting each packet
each data packet is depicted in the figure. So यहाँ पे हमारे पास packet transmissions हैं. What you see here is we have two nodes, a source node and a destination node. The blue color is the source node, the red is the destination node. You see the source node is transmitting in all direction, but similarly the destination node, when it receive the request to send packet, it will transmit the clear to send packets in all direction, but only यहाँ का इस एंटेना का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी. सो सिर्फ इसको जो है एक्टिव करेंगे इस एंटेना को, और यहाँ पे रिसीवर साइड पे ये एंटेना एक्टिव होगा एंड दे विल बी कम्युनिकेटिंग विद वन अनदर. सो यहाँ पे आरटीएस और सीटीएस के बाद हमारे पास जो एक्चुअल ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट होगी. लेट मी शेड सम लाइट on the main concept which is used in this protocol, and that is actually the mechanism used by the transmitting and receiving node to determine the direction of one another. किस तरह इसको पता चलेगा कि मेरे डायरेक्शन में इस वक्त ये नोड है और मैंने ये एंटेना जो है वो यूज़ करना है. So the main concept in this protocol is the mechanism actually that is used by the transmitting and the receiving node to determine the direction of each other. और इसका जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ लाइक दिस कि कोई आइडल नोड जो है, आइडल नोड ना वो ट्रांसमिट कर रहा है ना वो कुछ रिसीव कर रहा है. इट इज़ एज्यूम्ड टू बी लिसनिंग ऑन ऑल ऑनगोइंग ट्रांसमिशंस ऑन ऑल इट्स एंटेना. यहाँ पे भी ये लिसन कर रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. जो सेंडर नोड है it will first transmit RTS packet addressed towards the receiver. अब ये जो RTS packet है ये इस destination node के लिए है, but this RTS is transmitted through all the antenna. सिर्फ इससे ये ट्रांसमिट नहीं होता, यहाँ से भी ट्रांसमिट होगा, यहाँ से भी ट्रांसमिट होगा, यहाँ से भी ट्रांसमिट होगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी जो है वो ट्रांसमिट होगा. So there is like omnidirectional transmission of the RTS packet. अब फिर जो इंटेंडेड रिसीवर नोड है विच इन दिस केस इज़ दिस रेड कलर नोड विच इज़ द डेस्टिनेशन नोड, जब इसको ये RTS पैकेट मिलेगा इट विल रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसमिटिंग द CTS पैकेट. बट अगेन ये जो CTS पैकेट है ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जो है वो प्रोपगेट नहीं करेगा. it will again go on all its antennas, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और and यहाँ पे. So again it is like omnidirectional transmission. So CTS के लिए and RTS के लिए we are actually using omnidirectional transmissions. इसके अलावा जो receiver node है it will also note down the direction of the sender. किस तरह? By identifying the antenna that receive the RTS packet with maximum power. सबसे high value of the power is received by this antenna. So इस वैल्यू की वजह से आप डायरेक्शन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, and that is possible by using the RTS and CTS packets. जिस तरह मैंने बताया कि we don't have any किसी भी नोड के पास अपनी लोकेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती. You need a mechanism to find the location, और वो mechanism क्या है? By using the RTS and CTS packets, और उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है about the signal strength उसको आप कह लें, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ द नोड के कौन सा एंटेना जो है वो हम यूज़ करेंगे फॉर कम्युनिकेशन. ओके, नाउ जैसे ही सोर्स को CTS पैकेट मिलता है इट आल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिसीवर नोड इन अ सिमिलर वे द रिसीवर डिड. सो जो नेबर्स नोड हैं
उनको भी RTS और CTS पैकेट्स मिल रहे हैं because it is omnidirectional communication. They will actually defer their transmission for appropriate period of time. So after receiving the CTS, जो source node है, it will transmit the data packet. बट जो डेटा पैकेट की ट्रांसमिशन है वो सारे एंटेना से नहीं होंगी, बाय ओनली द चूजन वन, एंड दैट इज़ दिस वन. इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसमिशन होगी डेटा की, और बाकी जो एंटेनास हैं वो स्विच कर देगा, और दे विल रिमेन आइडल फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. एंड देन द रिसीवर नोड रिसीव्स दिस डेटा पैकेट ओनली विद द स्पेसिफाइड एंटेना. बाकी जो एंटेनास हैं वो भी आइडल मोड में चले जाएंगे, उसको जो है वो यूज़ नहीं किया जाएगा. चूँकि नोड जो है वो पैकेट्स को ट्रांसमिट कर रहा है ओनली थ्रू डायरेक्शनल एंटेनास, इसके जो इंटरफ्रेंस हैं कॉस्ट टू नोड्स इन द डायरेक्ट ट्रांसमिशन रेंज इज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली. यहाँ के पैकेट यहाँ के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे, यहाँ के साथ, यहाँ के साथ. सो इंटरफ्रेंस हैज़ बीन रिड्यूस. और इस इंटरफ्रेंस को रिड्यूस करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो ओवरऑल थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. एट द सेम टाइम यू कैन यूज़ अदर एंटेनास फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा टू सम अदर नोड्स इन द नेबर. सो दिस वाज अबाउट द प्रोटोकॉल जो कि डायरेक्शनल एंटेनास को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन. आवर लास्ट प्रोटोकॉल of this category is a multi-channel MAC protocol or MMAC protocol. It actually uses multiple channel for data transmission. That is why it is called multi-channel. However, आप कह सकते हैं कि previous कुछ protocols में भी हम multiple channels को यूज़ करते थे. वहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के चैनल थे, एक को हमने कंट्रोल चैनल कहा था, एक को डेटा चैनल. तो कंट्रोल चैनल्स जो हैं उनको हमने यूज़ किया था फॉर ट्रांसमिटिंग कंट्रोल सिग्नल और बिजी टोन्स. और जो डेटा चैनल्स हैं दे वर डेडिकेटेडली यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स. सो यहाँ पे मल्टी चैनल प्रोटोकॉल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल. अगर आपके पास n चैनल्स हैं एंड उन n चैनल्स को आपने इस तरह जो है वो मैनेज किया है कि उनके दरमियान जो है वो कोई इनफ स्पेक्ट्रल सेपरेशन है ताकि वो उनके सिग्नल्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें. सो एक्चुअली n channels are available for data transmission, right? And there is no separate or dedicated control channel. You can even use the data channel or one of the available channel for control information. So each node maintain, इस प्रोटोकॉल का जो मैकेनिज़्म है कि हर एक नोड पे हम एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं जिसको हम कहते हैं PCL. एंड PCL इज़ preferable channel list, a type of data structure जिसमें information होती है about the usage of the channels within the transmission range of a node. इसको हम कहाँ पे मेंटेन रखते हैं? PCL में. और इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ये जो चैनल्स हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं हाई, एक को हम कहते हैं मिड और एक को हम कहते हैं लो. वो चैनल्स जो कि कोई नोड करंटली उसने उसको यूज़ किया हो उसको हम कहते हैं हाई. चूँकि किसी भी नोड के पास सिर्फ एक ट्रांसीवर होता है सो देयर इज़ गोइंग टू बी ओनली वन हाई चैनल, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ट्रांसमिशन कर सकते हैं. सो आप एक टाइम पे एक चैनल को यूज़ कर सकते हैं और वो चैनल क्या कहलाता है? हाई कहलाता है. और हाई चैनल वो होता है जो कि किसी भी करंट नोड ने करंटली यूज़ किया हो. बीकन इंटरवल, बीकन इज़ अ स्मॉल पैकेट, इंटरवल इज़ अ टाइम जहाँ पे आप पैकेट्स को सेंड करते हैं. मिड लाइक द हाई, इट इज़ अ चैनल दैट इज़ फ्री and is not being currently used in the transmission range of the node. So it is actually a preferred channel जो कि आप यूज़ कर सकते हैं for the time. अगर आपके पास कोई हाई चैनल अवेलेबल नहीं है at the time तो आप क्या करेंगे? मिड चैनल को यूज़ करेंगे. एंड फाइनली वी हैव अ लो चैनल जिसको यूज़ करना इतना प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज ये जो चैनल है
it is being used in transmission range by other neighbor node. So यहाँ पे आप you have to compete, कोई counter value इसके साथ associated होगी and so on. So last page I will leave it for you कि आप उसको जो है वो खुद स्टडी करें. और इस प्रोटोकॉल में जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ATIM विंडो का कॉन्सेप्ट, एड हॉक ट्रैफिक इंडिकेशन मैसेज. जिस तरह आपके पास RTS CTS मैकेनिज़्म होता है, इसी तरह हमारे पास एटम एक्नॉलेजमेंट एंड रिजर्वेशन के मैसेजेस हैं जो कि सेंडर रिसीवर के दरमियान होते हैं. यहाँ पे हमारे पास दो तरह के विंडोज़ हैं. एक को हम एटम विंडो कहते हैं और एक को हम बीकन इंटरवल कहते हैं. एटम विंडो में एक्चुअली रिजर्वेशंस होती हैं फॉर ट्रांसमिशन, एंड बीकन इंटरवल में आपके पास जो है वो एक्चुअल डेटा की ट्रांसमिशंस होती हैं. सो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज़ हेयर while the actual transmission is here, and you will see कि यहाँ पे by using different channels you can actually send data by using different channels. आप at the same time different channels के दरमियान by using different channels communication कर सकते हैं. For example on channel 1 आपके पास sender 1 और receiver 1 communicate कर रहे हैं, while at the same time by using channel number 2 आपके S2 R2 और S2 जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ communication कर रहे हैं. So go through the details of this protocol, and this was the end of today's lecture. In today's lectures we talked about the make layer protocols that has been designed for mobile ad hoc network. हर एक प्रोटोकॉल को हमने डिटेल्स के साथ स्टडी किया. फर्स्ट हाफ में भी हमने फोकस किया माका से रिलेटेड प्रोटोकॉल पे, एंड देन इन द सेकेंड हाफ we elaborate some more protocols like Maca for wireless, and also we elaborate Maca by invitation, and then डायरेक्शनल एंटेनास के प्रोटोकॉल का मैकेनिज़्म किस तरह होता है उसको हमने एलाबोरेट किया, एंड फाइनली वी सा मल्टी चैनल मेक प्रोटोकॉल. So this was the end of the journey of the make layer for mobile ad hoc network. अभी तक हमने 3 लेयर्स को डिटेल्स के साथ स्टडी किया है. नेटवर्क लेयर को हमने देखा, इसके अलावा हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को डिटेल से देखा और उसके प्रोटोकॉल्स, एंड देन फाइनली मैक लेयर के प्रोटोकॉल्स, उसके डिज़ाइन इश्यूज, उसके चैलेंजेस, उस पर हमने बात की. इन द रिमेनिंग लेक्चर्स of this course we will be talking about some current networks that are inspired from mobile ad hoc networks. For example हम बात करेंगे delay tolerant network की, हम बात करेंगे opportunistic networks की, and then अगर हमें time मिला so we will also talk about vehicular ad hoc network. All these are different types of ad hoc networks जो कि mobile ad hoc networks से inspired हुए हैं. राइट, सो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.